ਬੱਚਿਓ ਆਪਾਂ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 7 ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਵਾ ਬਾਇਓਮੋਲੀਕਿਊਲਸ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਟਰੀ ਪਾਰਟ ਸਮਝਾਤਾ ਵੀ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਕੀ ਆ, ਲਿਪਿਡਸ ਕੀ ਆ, ਫੈਟ ਦੇ ਕੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਦਾ ਸਮਾਲੈਸਟ ਯੂਨਿਟ ਸੈਕਰਾਈਡਸ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰੋਡਕਟਰੀ ਪਾਰਟ ਇਹਦਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਲਾਸਟ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਕੈਟਾਬੋਲਿਕ ਤੇ ਐਨਾਬੋਲਿਕ ਦੋ ਟਾਈਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਾਇਓਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਇਓਕੈਮਿਸਟਰੀ ਤੋਂ। ਬਾਇਓਕੈਮਿਸਟਰੀ ਕੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਇਓਕੈਮਿਸਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬ੍ਰਾਂਚ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਬਾਇਓਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਦੇ। ਬਾਇਓਕੈਮਿਸਟਰੀ ਕੀ ਆ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ। It is a branch of chemistry. It is a branch of chemistry which deals with ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਸਟੱਡੀ, ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਜਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਬਾਇਓਮੋਲੀਕਿਊਲਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਾਇਓਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖਦੇ ਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਇਓਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੀ ਆ, ਬਾਇਓਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬਾਇਓਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹੀਦਾ। ਬਾਇਓਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਨੋਟ ਟੂ ਕੈਥੋਡ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਇਓਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਬਾਇਓਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਦੀ। ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਬਾਇਓਕੈਮਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਫਸਟ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਬਾਇਓਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਏ। ਫਸਟ ਸਾਡਾ ਬਾਇਓਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੈਗਾ ਕਾਰਬ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕੁਝ ਮਾਰਕਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇਹ 4 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਆ ਤੇ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਾਰਕ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ। ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀਆਂ 2 ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਆ, ਇੱਕ ਓਲਡ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਨਿਊ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ, ਮਾਡਰਨ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ। ਪੁਰਾਣੀ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਓਲਡ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਪੁਰਾਣੇ ਫਿਲੋਸਫਰ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਐਨੀਥਿੰਗ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਹੋਵੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੋਵੇ। ਵੇਖੋ ਕਾਰਬੋ 'ਚ ਕਾਰਬਨ ਆਉਂਦਾ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਕਾਰਬਨ ਹੋਵੇ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਮਿਕਸਚਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਬਣੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਲ, ਪੁਰਾਣੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆ ਤਿੰਨੇ, ਆਲ ਆਫ ਦੈਮ ਕੰਬਾਈਨ ਟੂ ਮੇਕ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ। ਆਲ ਆਫ ਦੈਮ ਕੰਬਾਈਨ ਟੂ ਮੇਕ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ। ਇਹ ਤੇ ਓਲਡ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਨ ਪਲਾਂਟਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਪਲਾਂਟਸ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਕੁਝ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਪਲੱਸ ਵਾਟਰ ਦੇ ਕੁਝ ਮੋਲੀਕਿਊਲ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਕੁਝ ਮੋਲੀਕਿਊਲ, ਐਕਸ ਲਾਤਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ, ਵਾਟਰ ਦੇ ਕੁਝ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਕੰਬਾਈਨ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ, ਗਲੂਕੋਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦਾ ਵਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ CH2O ਬੈਲੈਂਸ ਕਰ ਲਈ। ਆ ਵੇਖਿਓ ਮੈਂ H2O ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਕੀ ਲਾ ਦੂੰਗਾ, ਵਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਅੱਗੇ X ਲੱਗਾ, ਇਹਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਕੀ ਲਾ ਦੂੰਗਾ, X। ਆ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਗਿਆ।
वाई क्यों लाना पिया वा देखो जेकर वाई होवे 2 बैलेंस वे ने हो गई आ इत्थे 2 2 जा किन्ने हो गए 4 ते आ भी 2 ते 2 किन्ने हो गए 4 ते ऑक्सीजन भी किन्ने ने 2 ऑक्सीजन भी किन्ने ने 2 ठीक है। आ इहदा वेने बाद च किन्ना हुंदा वा भी जे इत्थे उन्होंने इदां रिएक्शन लिखी प्लांट्स विच की हुंदा एक्स मॉलीक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड दे वाई मॉलीक्यूल वाटर दे ते एक इस तरह का कंपाउंड बनाउंदे आ जिन्हों आपां कहीदा ग्लूकोज ते ग्लूकोज की है एक कार्बोहाइड्रेट या ओल्ड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जिहदे विच कार्बन होवे हाइड्रोजन होवे ऑक्सीजन होवे उन्होंने आपां की बोलांगे कार्बोहाइड्रेट नाल की बनदा ही एक्स मॉलीक्यूल के दे ऑक्सीजन दे। हुण वेखियो पूरा बैलेंस लगदा सी एक्स सी ने ना कार्बन किन्ने ने एक्स ते कार्बन किन्ने ने एक्स ये तो समझ आ जाता। ऑक्सीजन जे तुम इनू ना वेखो जे आ O2X आ ते आ वेखो O2X आ ये भी बैलेंस हो गया वाटर दे वाई आ ते वाटर दे वाई हुण पूरी बैलेंस लगती पई ते इस रिएक्शन दे विच आ जिहड़ा कंपाउंड बनिया इनू की बोलिया गया कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट शुरू च इनू ग्लूकोज नहीं कहा इनू की बोलिया गया कार्बोहाइड्रेट ठीक है। ये थोड़ा कि मैं ये बारे होर दसदा ताकि अगे चीज़ां अपनियां बनी जान सौखियां। लास्ट देखियो साडे कोल किहड़ा कंपाउंड बनिया CX H2O ते Y। जेकर मैं इत्थे नोट विच दसां एक चीज़ जिद्दां तुसीं वाटर वाटर दे विच इन्हां दी रेशो वेखो हाइड्रोजन ते ऑक्सीजन दी इहदे 2 इहदे पैर च की लगा 1:2:1 ते इस कंपाउंड दे विच भी रेशो वेखो किन्नी आ वाटर दी 2:1। उन्होंने पुरानी डेफिनेशन च ये भी क्लीयर किया ही इस तरह का कंपाउंड होवे जिहदे च हाइड्रोजन ते ऑक्सीजन की रेशो सेम होवे जिन्नी वाटर विच हुंदी उन्होंने कार्बोहाइड्रेट कहांगे। उन्होंने कहा ही इस तरह का कंपाउंड होवे जिहदे विच हाइड्रोजन ते ऑक्सीजन की रेशो वेखो 2:1 हैगी सेम होवे जिन्नी किहदे विच हुंदी वाटर दे विच हुंदी। उन्होंने की कहा ही इन्हां नूं कहा ही दे आर कार्बोहाइड्रेट नूं होर किदां डिफाइन किया ही दे आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। दे आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन हाइड्रेट्स किन्ना नाल आईदा जिन्हां दे विच हाइड्रोजन ते ऑक्सीजन की रेशो सिमिलर हुंदी जिन्नी वाटर दे विच हुंदी। दैट इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर इन सेम रेशो। दैट इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर इन सेम रेशो as in water ठीक है। ये चीज़ भी सानू क्लीयर हुंदी पई है। हुण आपां देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स मैं ये हेठां ही लिखदा वां ताकि उपरली चीज़ साडी फिर आ एक दूजे नाल मैच करे। एग्जाम्पल्स देखियो कार्बोहाइड्रेट्स दियां एग्जाम्पल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स दियां ओल्ड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल्स देखियो। पहली एग्जाम्पल मैं लिखदा ग्लूकोज बारे सब नूं पता की फार्मूला हुंदा C6H12 ते O6। इनू वेखो मैं इस तरह लिख सकदा C6 ते मैं उदा लिखिया आ चीज़ बड़े ध्यान नाल देखियो C6 मैं उदा लिखिया हाइड्रोजन ते ऑक्सीजन दे विचों मैं आ इन्हां नंबरां विचों किहड़ी चीज़ कॉमन कड्डां मैं इत्थों जे मैं 6 कॉमन कढ लां हाइड्रोजन दे पैर च किन्ना रह जू 2 6 2 ਜਾਂ 12 हुंदा ते ऑक्सीजन दे पैर च किन्ना रह गया 1। वेखो सेम फार्मूला C6 H12 6 2 ਜਾਂ 12 O6 हो गया। हुण इनू ते इनू रिलेट करो देखो उन्होंने क्या ही कार्बोहाइड्रेट किहड़े हुंदे जिन्ना याद रखो जिन्हां दे विच आ चीज़ बन जे वाटर जिहा बन जे
क्योंकि इत्थे रेशो वेखो किन्नी आ 2 हाइड्रोजन दे ते ऑक्सीजन दा 1 ते वाटर दे विच भी की हुंदा 2:1। फिर ये ओल्ड डेफिनेशन दे अकॉर्डिंग पूरा करैक्ट आ, ये कार्बोहाइड्रेट हैगा। ग्लूकोज नूं आपां कार्बोहाइड्रेट मन्नांगे पुरानी डेफिनेशन दे अकॉर्डिंग। सैकेंड देखियो, सैकेंड आपां कोई एग्जाम्पल लईने कार्बोहाइड्रेट्स दी, जिद्दां मैं लिख लेना सुक्रोज। सुक्रोज हुंदी ना टेबल शूगर, ਜਿਹੜੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਖੰਡ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਸੁਕਰੋਸ, ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ C12H22O11, C12H22 ਤੇ O11। ਦੇਖਿਓ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆ C12 ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਲਿਖੂੰਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਓ H ਤੇ O ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਮੈਂ 11 ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲਾਂ, अंदर की रह जूगा हाइड्रोजन के पैर च 2 ते ऑक्सीजन के पैर च 1। आ वेखो C12 C12 H22 11 2 ਜਾਂ 22 ਤੇ O11 आ गई। हुण इहदे विच भी देखो किन्नी रेशो 2:1 ते वाटर च भी की हुंदी 2:1। फिर ये हाइड्रेट हो गया कार्बन दा, जे जिन्हां दे विच रेशो मैच हो जे ना उन्हां नूं होर की बोली दा हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। फिर ये भी साडा कार्बोहाइड्रेट बन गया पुरानी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। आपां कोई होर एग्जाम्पल लैके देखते हैं, जिद्दां आपां कोई एग्जाम्पल आपां लैने आ, जिद्दां स्टार्च हो गया, सैलूलोज हो गया, जां मैं इत्थे उन्होंने अगले लिमिटेशन बना के दस दिना वा, ये होर ना लिखे उदा तुसीं लिख सकते हैं फ्रुक्टोज भी इहो हुंदा C12H12O6, वो भी कार्बोहाइड्रेट हो गया। स्टार्च लिख सकते, फ्रुक्टोज जे सेम हो जाता ना लिखो। तीसरी एग्जाम्पल स्टार्च होगी, स्टार्च हो गया। चौथी एग्जाम्पल होगी सैलूलोज, सैलूलोज स्टार्च हुंदा जे आलू दे विच हुंदा, पटाटो दे विच, जेड़ा वीट आटा हुंदा उहदे विच भी हुंदा, ठीक है। तो सैलूलोज भी हुंदा है शायद मक्की दे विच, इहो जिहियां चीज़ां च हुंदा है, ठीक है। ये सारे कार्बोहाइड्रेट्स ही ने, ये पुरानी डेफिनेशन ते पूरे जिद्दां कह लो फिट बहंदे ही। हुण आपां देखदे हां भी पुरानी डेफिनेशन दियां की लिमिटेशनस ने। नैक्सट अपना हैडिंग आ गया, नैक्सट साडा हैडिंग आ गया लिमिटेशंस, लिमिटेशंस ऑफ ओल्ड डेफिनेशन, लिमिटेशंस ऑफ ओल्ड डेफिनेशन। ओल्ड डेफिनेशन की आ फिर क्लीयर हो जे, ओल्ड डेफिनेशन दे अकॉर्डिंग कार्बोहाइड्रेट की हुंदा, कार्बोहाइड्रेट की हुंदा जिहदे विच की फार्मूला बने CXH2O ते Y। जे इदां दी चीज़ बन जे उन्होंने आपां की कहीदा हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन जां कार्बोहाइड्रेट्स। हुण मैं एक इत्थे कंपाउंड लिखदा वां फॉर्मैल्डिहाइड, फॉर्मैल्डिहाइड, फॉर्मैल्डिहाइड बारे तुहानूं पता होना, इहदा फार्मूला हुंदा HCH ते O, HCH ते O। वेखियो इहनूं मैं इदां लिख सकदा, H कार्बन इत्थे रहन ता H किन्ने ने 2, H2 ते O सेम ओह चीज़ ही आ, H2 कार्बन 1 ऑक्सीजन 1 ते ऑक्सीजन 1। हुण इत्थे देखो आ पूरा इधर सही बहंदा पिया, पूरा ये देखो ना मैच करता पिया ना। इत्थे भी वाटर की रेशो किन्नी हाइड्रोजन ते ऑक्सीजन की 2:1, इत्थे भी किन्नी 2:1। हुण ओल्ड डेफिनेशन दे अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू ओल्ड डेफिनेशन HCHO इज़ अ कार्बोहाइड्रेट,
इज़ अ कार्बोहाइड्रेट बट एक्चुअली इट इज़ नॉट, बट एक्चुअली इट इज़ नॉट, असल च ये नहीं हुंदा। फिर सानू डेफिनेशन ने किते ना किते इत्थे गलती कराती ना। पुरानी डेफिनेशन कहती भी जिहदे च इदां दी चीज़ मैच हो जाती, रेशो सेम हो जाती, वो कार्बोहाइड्रेट आ। पर फॉर्मैल्डिहाइड ते कार्बोहाइड्रेट हुंदा ही नहीं, रेशो जरूर मैच हुंदी पई पर ये कार्बोहाइड्रेट नहीं हैगा। फिर ये लिमिटेशन बन गई ओल्ड डेफिनेशन की। जे ये क्लीयर नहीं होया, एक एग्जाम्पल होर लिखो, जिद्दां मैं लिखा CH3COOH इथेनोइक एसिड, मैं इत्थे एक कंपाउंड लिखदा वां इथेनोइक एसिड, जिहदा की फार्मूला हुंदा CH3COOH। वेखियो इनू मैं थोड़ा क सही करके लिखा, किन्ने कार्बन ने 2, मैं इत्थे C दे पैर च 2 पा दिना। फिर मैं इत्थे H2O पा के कुछ इत्थे बाहर लिखदा वां। हाइड्रोजन किन्ने ने 4, मैं इत्थे 2 पा दूंगा। ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन भी दोगे। देखो पूरा एक दूजे नाल मैच करदा। कार्बन 2, कार्बन 2, हाइड्रोजन 4 ते 2 2 जा 4 हो गया, हाइड्रोजन भी 4, ऑक्सीजन 2 ते ऑक्सीजन भी किन्ने हो गए 2, पूरा एक दूजे नाल मैच करदा। तो इत्थे भी देखो H2O की रेशो किन्नी, हाइड्रोजन ते ऑक्सीजन की 2:1, इत्थे भी किन्नी 2:1। फिर वो चीज़ ओल्ड डेफिनेशन कहती ये कार्बोहाइड्रेट आ, पर ये तो कार्बोहाइड्रेट का इसका नामो निशान ही नहीं हैगा। एक्चुअली ये नहीं हुंदा। आपां की कवांगे अकॉर्डिंग टू ओल्ड डेफिनेशन इट इज़ अ कार्बोहाइड्रेट, it is a carbohydrate but actually it is not, but actually it is not, असल च ये कार्बोहाइड्रेट नहीं हुंदा। ठीक है, सानू लिमिटेशंस पता लग गईयां। होर भी आपां करदे आ, जिद्दां ये ते मैं 2 बनाते जेड़े असल च नहीं ही हैगे। हुण जेड़े असल च हैगे पर इच फिट नहीं पैंदे, वो देखते हैं। अगले 2 पॉइंट भी ध्यान नाल देखियो। देखियो थर्ड पॉइंट की आ, मैं एग्जाम्पल लैना वा रेमनोज दी। रेमनोज की एग्जाम्पल लैने आ, वेने भी इच किदां दी प्रॉब्लम आउंदी आ। रेमनोज का पहलो फार्मूला हुंदा C6H12O5, ਇਹਦਾ फार्मूला हुंदा C6H12O5। ये 100% कार्बोहाइड्रेट आ। इट इज़ अ कार्बोहाइड्रेट, पर जेकर आपां ओल्ड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलीए, इनू तुसीं तोड़ ही नहीं सकते। आ C6 इत्थे आ, हुण H2O ते इत्थे तुसीं की सोचोगे, की ला सकदे, ये बड़ा फ्रैक्शन दे विच आ, ये नहीं बन सकदा। ਇਹਦੇ ਚ हाइड्रोजन ते ऑक्सीजन की रेशो ਇਹਦੇ अर्गी नहीं हुंदी। बट अकॉर्डिंग टू ओल्ड डेफिनेशन इट इज़ नॉट। ठीक है, पर यह कार्बोहाइड्रेट हुंदा वा, याद रख लियो। ओल्ड डेफिनेशन कार्बोहाइड्रेट नूं भी कही जाती है, कार्बोहाइड्रेट नहीं हैगा। फिर कमी हैगी ना ओल्ड डेफिनेशन दे विच। जेकर आपां अगला कार्बोहाइड्रेट देखते हैं, 4th नंबर वाला डीऑक्सीराइबोज। केड़ा वा? डीऑक्सीराइबोज। देखो जेकर ते होवे राइबोज होवे ते ओदा फार्मूला हुंदा C5H10O5। जेकर होवे कल्ला राइबोज भी एक कार्बोहाइड्रेट आ, ओदा फार्मूला हुंदा C5H10O5। पर जे लगा डीऑक्सी 5 दे घटा के 4 कर देने, C5H10 ते O4 कर देना। एक हिसाब की शुगर ही हुंदी है, ये एक हिसाब की शुगर ही आ, कार्बोहाइड्रेट ही आ। ओल्ड डेफिनेशन कहती है कार्बोहाइड्रेट नहीं हैगा, पर असल दे विच कार्बोहाइड्रेट हुंदा वा। आपां कह देना इट इज़ अ कार्बोहाइड्रेट।
इट इज़ अ कार्बोहाइड्रेट बट अकॉर्डिंग टू ओल्ड डेफिनेशन इट इज़ नॉट। ठीक है, ये मैं 4 लिमिटेशन दस दियाँ नाल एग्जाम्पल दे के समझ लगनियाँ चाहिए वा। हुण जे देखो पुरानी डेफिनेशन आपां पढ़ी, सानू समझ भी लगी आ ते सानू लगा भी ये डेफिनेशन पूरी करैक्ट नहीं हैगी, तो फिर अगे जाके किसी साइंटिस्ट ने उन्होंने इंप्रूव किया होगा, नवी डेफिनेशन बनाई होगी, तो वो नवी डेफिनेशन की वा हुण अपना वो टॉपिक आ जाना। केड़ा टॉपिक आ जाना? न्यू डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। साडा नवा हैडिंग आ गया न्यू डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। न्यू डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स देखो इनू किद्दां डिफाइन कर सकते। अजकल आप कहीदा वा कार्बोहाइड्रेट्स आर पोली अल्कोहलिक एल्डिहाइड। जे मैं इत्थे देखो ग्लूकोज एग्जाम्पल देखियो, ग्लूकोज की हैगा वा C6H12O6 हुंदा। कार्बन किन्ने ने 6 1 2 3 4 5 ते 6 कार्बन ने। हुण इत्थे की लगा हुंदा एल्डिहाइड। CHO केदा ग्रुप हुंदा? एल्डिहाइड दा। फिर की हुंदा? OH हुंदा, OH हुंदा, OH हुंदा। ठीक है, ये वैसे अगे जाके आप थोड़ा चज ना पढ़ांगे, हो सकता आ इधर ते आ इधर होवे भी माइनर जी कोई मिसटेक हो सकती। फिलहाल मैं इत्थे समझाउण ही लगा वां। नवी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कार्बोहाइड्रेट किन्ने वेखो ये कार्बन किन्ने ने 1 2 3 4 5 6 इत्थे भी कुछ ना कुछ हुंदा है मे बी इस तरह CH2OH। जदों इत्थे पहुँचांगे ये स्ट्रक्चर हुंदे ने बनावांगे उदों आपे ये पूरा करैक्ट बनूगा। हुण वेखो इच कार्बन किन्ने 1 2 3 4 5 6 कार्बन हैगे। हाइड्रोजन किन्ने 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गए। ऑक्सीजन किन्ने 6 1 2 3 4 5 ते 6 पूरा मैच करता पिया। ऑक्सीजन 6 आ। हुण इहदे स्ट्रक्चर च देखो OH किन्नी बार आया, इत्थे भी OH आया, इत्थे भी OH आया, इत्थे भी OH आया, इत्थे भी OH आया। किन्नी बार आया? फिर आप इनू कह सकते पोलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड हुंदा है। भी पोली का मतलब हैगा मैनी, भी ये किन्ने हाइड्रोक्सी ग्रुप हैगे आ, आपां की कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स आर पोलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। जे आप इदां डेफिनेशन लिखी आप कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स आर पोली का मतलब हुंदा मैनी केड़े अल्कोहलिक कह लो या हाइड्रोक्सी कह दो, पोलीहाइड्रोक्सी कह लो या अल्कोहलिक भी कह सकते क्योंकि OH अल्कोहल नूं रिप्रजेंट करदा। पोलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड ये तो साडी एक डेफिनेशन होगी कि कार्बोहाइड्रेट्स आर पोलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। जां आपां इन्हां नूं कह सकते देखो इत्थे इस तरह भी हो सकता। फ्रुक्टोज दे विच कीटोन हुंदा, ग्लूकोज दे विच एल्डिहाइड हुंदा ते फ्रिक्टोज दे विच की हुंदा वा कीटोन। हुण आपां होर की कह सकते? वैसे मैं ग्लूकोज दा ते इत्थे CHO ही होना। जेकर इत्थे हुंदा फ्रुक्टोज दा फार्मूला सेम हुंदा। जेकर इत्थे हुंदा फ्रुक्टोज ते इत्थे कीटोन होना है। फिर आपां कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स
carbohydrates are polyhydroxyketones polyhydroxyketones भी कह सकते होर की कह सकते एक चीज़ होर याद रखियो दे कंटेन कायरल कार्बन इनू चिराल भी कई बोलते आ पर कायरल एग्जैक्ट हुंदा कायरल कार्बन किहड़ा हुंदा देखो अजिहा कार्बन जिहदे आले दुआले 4 डिफरेंट ग्रुप लगे होण जिद्दां आ कार्बन इहदे नाल इधर कुछ होर लगा होवे इधर कुछ होर लगा होवे इधर कुछ होर ते इधर कुछ होर 4 डिफरेंट ग्रुप लगे होण उहनूं कायरल कार्बन कहंदे ते इहदे विच भी कायरल कार्बन हुंदा है ठीक है। ये तो साडी आ गई न्यू डेफिनेशन। हुण आपां की करदे हैं देखो न्यू डेफिनेशन हो गई तो एक मैं तुहानूं ओल्ड डेफिनेशन अज कराती लिमिटेशन करातियाँ। हुण आपां नैक्सट डे की करना वा देखो न्यू डेफिनेशन अपनी होगी नैक्सट डे आपां करनी आ क्लासीफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट भी कार्बोहाइड्रेट किन्ने तरह दे आ केड़ी क्लासीफिकेशन आपां पढ़नी आ 3 मेन क्लासीफिकेशन हुंदियां ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट जिद्दां जिद्दां आपां कहीदा वा मोनोसैकराइड पॉलीसैकराइड ते ओलीगोसैकराइड। एक आपां पढ़ना वा ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट एक हुंदे स्वीट टेस्ट वाले जिन्हां नूं आपां शूगर कह देईदा एक हुंदे नॉन शूगर जिन्हां दा टेस्ट स्वीट नहीं हुंदा तो फिर आपां पढ़ना वा ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग नेचर जिस टॉलन रीएजेंट की गल करांगे ठीक है। इन्नियां चीज़ां देखियो अज लई थैंक यू जे कोई प्रॉब्लम होवे पुछ लियो जरूर।